homemaker, I think honestly is not an easy task. पूरी फैमिली को मैनेज करना, सबकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना, it's not an easy task. Hello everyone. Today we have a wonderful young entrepreneur, Miss Harsha Rathi, who before becoming a Mrs. has become a very successful entrepreneur in the field of creating amazing taste buds for us. That is, she has been running Harsha's Cake Studio for the last 4 years, which looks like 10 years for now. And with her we have her mom, her inspiration and support, जिनको वो कहती है माँ, वो है Mrs. Anita Rathi, who is not only a homemaker but also an entrepreneur maker. So we would like to hear their journey today. Welcome Harsha, welcome Mrs. Rathi. So Harsha, before coming to you, we would like to ask ma'am, मैम आपको कैसा फील होता है? हर्षा आज इतनी यंग एज में इतनी सक्सेसफुल है एंड आपकी जो डॉटर है, यंगर डॉटर, वो भी इतना अच्छा कर रही है, तो आपको कैसा फील होता है? ये हर एक माँ का प्राउड मोमेंट होता है कि उसके बच्चे, उसकी बेटियाँ बहुत आगे तक जाए और हर जो वो लोग चाहती हैं, अपना जो उनका ड्रीम होता है उसके अंदर वो लोग फुली सक्सेस हो, वो हर एक माँ चाहती है। और आज मैं इनको जब देखती हूँ इस मुकाम पे, मुझे बहुत खुशी होती है देख के, और मेरे को वो फील आती है कि हाँ, इन्होंने अपने सपने जो उन्होंने सोचे थे उसको आज ये लोग अपना जी रही है उसको उसके अंदर। So आपने ऐसा क्या उनको पढ़ाया, सिखाया, बोला, डांटा, मारा, जिससे कि ये आज इतनी सक्सेसफुल बन चुकी है? नहीं, मुझे ये सब कुछ तो नहीं करना पड़ा। एक्चुअली ये जब छोटी थी, छोटे से ही इसके अंदर ये चीज़ थी कि मुझे कुछ करना है। जब भी छोटी थी इसको कुकिंग का एंड ऑल ये सब का बहुत शौक था। ये किचन में बार बार आती थी, देखती थी कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और इसका एक सपना था कि मुझे मास्टर शेफ में जाना है। वो हमेशा अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करने के मूड में रहती थी कि मेरे को जाना है। लेकिन वो बस यही सब करते करते ये इसका था कि कुछ करने का, वो आज ये कर पाई है इसी को सोचते हुए। उसका हमेशा से ही कुकिंग में एक इंटरेस्ट था। डेफिनेटली we'll come to Harsha and ask this कि हर्षा, कुकिंग तो हम जनरली देखते हैं कि मम्मी ही करती है ज़्यादातर, बहुत जगह हम ये भी देखते हैं कि पापा भी करते हैं। तो आपके लिए क्या इंस्पिरेशन रहा है आपकी लाइफ में आपकी मम्मी से? Okay, inspiration, actually I was the first born in my family. We were in a joint family basically. तो जो elder siblings जो थे वो लोग बहुत बड़े थे मुझसे एज में. So I was the first one. Moms those days would be very busy. उनके पास उतना टाइम नहीं होता था कि हमको लेके बैठे रहे वो. So when I was like 4-5 years old maybe, she used to bring me to the kitchen so that I was also safe. She could keep an eye on me कि मैं क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ. And those simple things that you just sit down. She used to give me a potato to peel maybe. And उनको देख के I used to feel like that this is interesting because इतने सारी चीज़ें किचन में होती हैं to see what is happening and everything. So धीरे करके I think from that only मैं जो कर रही हूँ भी I got an inspiration or maybe I got interest कि no, I want to do something which is coming from this background maybe. Otherwise we all have कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, but there are very few people who have interest in kitchen and household. So I think yes, I got an inspiration from that, and मेरी mom ने कभी मेरे को stop नहीं किया to learn something new maybe, because she was like कि हाँ, studies and all everything is good, but you should be able to do everything. There is nothing that you should not do or you're not able to do. I know, मतलब she has taught me everything, like each and everything कि कैसे क्या करना है, how to set up everything. छोटी छोटी चीज़ें जो हम घर में करते हैं. It's nothing that okay you should be away from this, you should only concentrate on your studies or something like that. कभी भी वैसा environment था ही नहीं कि सिर्फ पढ़ो, कि only you have to be that bookworm and you have to 24 hours you have to be towards that. So I think yes, we had that environment that you have to learn everything and anything, and ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए that's stopping you. How did that make you feel? I think initial days में it would be like कि why we are like I was so young and अभी से क्यों ये सब,
बट देन इनिशियली वी वर लाइक कि नहीं, सब कुछ सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज if we go out someday to study for our higher studies, we have to live alone. And अगर उस point of time में you don't know how to live, because मम्मा हर जगह नहीं आएगी हमारे साथ, there is a zone where we can be with our family and we have to be independent after some time. So I think वो stage बहुत अच्छा था that she made us do everything and made us independent at that point of time. तो आगे problem नहीं हुई इतनी ज़्यादा. Beautiful. So this thing I would like to say everyone that पेशेंस की जो वो बात कर रहे हैं, ये हमने रियलिटी में अभी ही ऑब्जर्व किया. इट हैड बीन अ क्योटिक डे टू डे, बट जैसे ही हमने चेंजेस किए, बहुत सारे चेंजेस आए, एंड दे वॉज वेरी पेशेंट इनफ टू रियली कम अलॉन्ग एंड डू थिंग्स. तो ये पता चलता है कि इनकी कुकिंग, इनके वर्क में भी कितना पेशेंस रहा है, तभी इतना आप सक्सेसफुली रन कर रहे हो आज बिल्कुल. बिजनेस. तो ये आपके रियलिटी से पता चल रहा है. मतलब पेशेंस तो आप में है, तो और मम्मी आपकी कह रही है कि पेशेंस उनमें इतना नहीं है जितना आप में है. आपको क्या लगता है ये पेशेंस कैसे डेवलप हुआ? डिड यू ऑब्जर्व योर मॉम एंड सॉ? I think yes, of course. मेरी मॉम सी था, because I have a younger sister and a younger brother also. So अगर उनमें पेशेंस नहीं होता, I don't think so we would be where we are today, because पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है to upbring your children. Without patience, because a journey of a mother is very difficult, I feel, because not only children but household में भी कितने कुछ होते हैं where you require lot of patience. मतलब I think in a day कितना कुछ चलता रहता है हमारे मन में, हमारे अंदर, whatever is happening in our reality. बच्चों के साथ कुछ होता है, घर में भी बहुत कुछ होता है, we have our own personal lives also, and सब कुछ इतना अच्छा से manage करना and be patiently handling everything. I think that is something we have to learn, and wahi se we can develop. And something what I'm doing today, I think that requires a lot of patience, because baking itself is a very patientful task, I would say. Matlab, if you bake a cake, starting from preparing the batter till the cake is made, it requires a lot of patience, because cooking तो फिर भी बहुत जल्दी हो जाता है, but baking takes a lot of time, because एक भी ingredient इधर उधर हुआ and everything is gonna mess up. सो मैम, पेशेंस आपने सिखाया, और आज जो हर्षा कर रही है वो एक बहुत ही डिफरेंट फील्ड है. दो आज की डेट में बहुत ही बूमिंग फील्ड है, बहुत ही हाइप्ड अप है, बट इन डेज व्हेन शी हैड स्टार्टेड culinary आर्ट, उस समय में मम्मियाँ यही बोलती थी कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो. तो आपने किस तरह से या किस लिए उसको इतना मोटिवेट किया culinary आर्ट में? पढ़ाई तो सबके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ही. बट मैंने जब छोटा से इसको देखा कि इसके कुकिंग और बेकिंग के प्रति इसका बहुत बहुत ज़्यादा इसका ये था कि मेरे को सीखना है, मेरे को कुछ करना है. जब एक मोमेंट आया कि आफ्टर 12 इसको अपने लिए चुनना था कुछ कि मेरे को आगे क्या करना है, तभी बड़ी कंफ्यूज थी. तो वो ये एक दिन ही मेरे पास आके मेरे को बोलती है कि मम्मा मेरे को आगे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए. ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छी रही है, अपने टाइम में बहुत अच्छा था इसका. तो इसको इतना कंफ्यूज थी, ये हमेशा ये सोचती रहती थी कि मुझे कौन सा लाइन में जाने से मेरा वो होगा. एक दिन आके हमको बोली कि हमको कौन सा लाइन चूज करना चाहिए, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ. तो मेरे दिमाग में एक ही बात है कि तुमको जो अच्छा लगता है, जो चीज़ करने में तुम कंफर्ट फील करती हो, तुमको लगता है कि नहीं मुझे ये करके बहुत अच्छा लगता है, तुमको वही चीज़ चूज करना चाहिए. नहीं कि तुमको कोई प्रेशराइज कर रहा है कि तुमको MBA CA या कुछ भी करना है, वो ज़रूरी नहीं है तुम्हारे लिए. तुम्हारा जो पेशेंट, तुमको जो अच्छा लगता है तुम्हारे करके, तुमको खुशी मिलती है, तुमको वही चूज़ करना चाहिए. तब ये बोली कि नहीं हमको तो इस लाइन में जाना. अच्छा, तो मैंने उसको उसी टाइम स्टॉप कर दिया कि तुमको आगे MBA CA में नहीं जाना है, तुमको अगर ये अच्छा लगता है तुम इसी लाइन में जाओ. तो इसको भी ऐसे लगा कि हाँ मेरे को ये चूज़ करना चाहिए, मेरे लिए बेस्ट होगा. और मैं तो ये सबके लिए भी यही चाहती हूँ कि हर आदमी के पास में जब उसको अपना करियर चूज करने का टाइम आता है तो उसको लगता है कि बहुत कंफ्यूज हो जाता है क्या करना है. लेकिन उस टाइम ये बहुत ज़रूरी है, उसको अपने दिल की सुननी चाहिए उस टाइम कि हाँ उसका दिल क्या बोल रहा है इस चीज़ के लिए. मेरे जितने भी करियर एस्पिरेंट्स है, जो भी मेरे पास करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं, आई वुड लाइक टू से यू दैट दिस इज नॉट अबाउट काउंसलर्स.
या करियर में आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट आपके पेरेंट्स बन सकते हैं और आपके सबसे बेस्ट काउंसलर आपके पेरेंट्स हैं. सो ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव मदर्स लाइक मिसेस अनीता, तो फिर हमें और कोई काउंसलर की क्या दरकार है. तो ये बिल्कुल सही है. जब बच्चा बड़ा होता है, अपने करियर के बारे में सोचता है, तो जितना अच्छा उनको गाइडेंस उनके पेरेंट्स कर सकते हैं, आई थिंक दूसरा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने बच्चे के बारे में जानते हैं. वो उसका नेचर, उसका जो लव है, उसको आगे कहाँ जाना है, उसको किस में उसको खुशी मिलती है, उससे बेस्ट कोई नहीं जानता है. और वो इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए. ब्यूटीफुल. सो आप ऐसा कुछ कहना चाहते हो हमारे ऑडियंस को, जो न्यू पेरेंट्स हैं उनको, आप ऐसा कुछ कहना चाहते हो जो कि हम सीखें उनसे? हाँ, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चों की जो फीलिंग्स है उसको हर पेरेंट्स को समझना चाहिए. वो आजकल मैंने देखा है, मोस्टली लोग पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे जाए, ये CA MBA या उनमें आगे तक जाए और पैसा मतलब कमाए. लेकिन पैसा हर चीज़ में प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए. बच्चे की खुशियाँ भी बहुत हद तक हम लोग देखते हैं. बहुत बार होता है कि हम लोग बच्चों को डाल देते हैं उसमें, लेकिन वो पूरे सेटिस्फाइड नहीं हो पाते उस चीज़ को लेके. उनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है कि आज मैंने वो किया होता तो मैं कुछ और अच्छा कर पाता. तो वही मैं सबको यही बात बोलना चाहती हूँ कि सबको ये चीज़ को समझना चाहिए, और जिसमें उनको अच्छा लगता है, वो कंफर्ट फील करते हैं, उनको उसी चीज़ में उसको आगे बढ़ने के लिए उनको मोटिवेट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए. आप क्या कहना चाहते हो हम सबको? आपने क्या सीखा है अपनी मदर से? She is a very good cook. So obviously she is my first teacher for everything. जो भी मैंने सीखा है, whatever I could do, I think it's all because of her. उनका सपोर्ट नहीं होता तो आई डोंट थिंक सो आई वुड स्टैंड वेयर एवर आई एम. ऑफ कोर्स इट्स अ जर्नी, आई एम नॉट सक्सेसफुल येट. बहुत माइलस्टोन्स है जो अभी मुझे अचीव करने हैं, बट आई डोंट थिंक सो उनके बिना ये चीज़ पॉसिबल होगा. बिकॉज एट द एंड ऑफ एवरीथिंग, इफ आई हैव टू से समथिंग टू एनीवन, इट्स माय मॉम. उनके बिना आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल. वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू हर्षा. जब हम कुकिंग करना शुरू करते हैं तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमें मास्टर शेफ में जाना है, बट उसका बैकअप में बहुत जन ये भी सोचते होंगे कि हमें होम मेकर बनना है. क्या आपके भी दिमाग में कभी ऐसा आया? Being a homemaker, I think honestly is not an easy task. If someone would ask me at this stage, I would say no. हमारी मम्मा जितनी अच्छी homemaker है, I don't think so we can be in future, because what I see nowadays is people want to be financially independent. That is very much correct, and it should be, especially for girls. It's topmost priority. You should be financially independent. You should not be dependent on anyone, be it your husband also. But I think being a homemaker requires a lot of patience, and it's an art. Jitna we can excel in our career wise, I think this should also be appreciated. We don't appreciate our moms that much. Matlab, if we get a corporate success or something, everyone is there to celebrate. But I hardly see people who celebrate our moms. Real life heroes तो I think वही हैं. We would not be here where we are अगर उनका support, उनका guidance, उनका patience नहीं होता हमारे साथ. पूरी family को manage करना, सबकी requirements fulfill करना, it's not an easy task. I have seen her, कितनी बार वो अपने अंदर की जो भी feelings होती थी, she would not bring that out. Because maybe family की खुशी उनसे बड़ी है. But in today's world, we are very much self-concerned, and we have this कि नहीं, whatever is going inside, we have that is very much correct. But हमारी moms जितनी अच्छे से सब कुछ handle कर पाई थी, I don't think so we'll be able to do it. So it's not an easy task. So yes, we always have career aspirations कि कुछ करना है, but हम homemaker बनने की नहीं सोचते हैं. कहीं ये तो नहीं कि हम डरते हैं मम्मी की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में, क्योंकि हमारी मम्मी जो माँ है, जो दुर्गा का रूप हमारे लाइफ में जीती जाती रूप है, उसको हम कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं कोई और चीज़ से. एंड सो वी आर सो ग्रेटफुल कि आप लोग इस शो में आए. आपने इतना समय दिया, इतना पेशेंस दिया मुझे, हमारे शो को. इसके लिए आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, एंड आपको मेरा प्रणाम. Thank you. This is a small token of love for you.